Hare Krishna, dear devotees. Thank you very much for all of you taking time and coming for the center program today. So हिंदी में या हिंदी में हिंदी में बोलो कथा इंग्लिश में प्रेजेंट करता हूँ ठीक है हिंदी में बोलता हूँ so that everybody will be happy ठीक ओके ठीक है तो आज हम लोग नरसिम्हा कथा चर्चा करेंगे नरसिम्हा कथा ऑलरेडी आप लोग थोड़ा बहुत सुना है previously when Brajakrishna Prabhu came, he explained the teachings of Prahlad Maharaj. So I will reduce the teachings of Prahlad Maharaj a little less, and then I will increase the other part of the story. Okay, so that we will try to cover everything. And there are many slides I prepared. I'll try to walk through the slides, but I will not talk much. I will not read much on the slides, but I will keep telling whatever is presented there, so that you can relate. Those who don't understand Hindi, at least they can see what is presented there so that you can understand. Okay. Okay. Before actually we start Katha. So today Katha is about Narasimhadev and Prahlad Maharaj. Okay. So first we will glorify Prahlad Maharaj in one shloka which is mentioned in Srimad Bhagavatam 7th canto. In that canto, what Narasimhadev told about Prahlad Maharaj, we will see. Okay. uh, we might have seen devotees glorifying God, right? It's quite common. But have you ever seen God glorifying devotee? It's very rare, right? So that we will try to see no, what Narasimha Bhagwan is telling about Prahlad Maharaj, and then we will get into the Katha today. Okay. ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. So this is the glorification about Prahlad Maharaj in Srimad Bhagavatam 7th canto. Okay. Shri Bhagavan भवन्ति पुरुषालोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रतः भवान्मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृ. Those who follow your example will naturally become my pure devotee. You are the best example of my devotee, and others should follow in your footsteps. This is what Narasimha Bhagwan has told about Prahlad Maharaj. Okay, तो प्रहलाद महाराज इतना बड़ा डिवोटी है, इतना अच्छा डिवोटी है कि इससे बड़ा डिवोटी और कोई है ही नहीं. अगर किसी को डिवोटी बनना है, तो किसको इंस्पिरेशन लेना है? प्रहलाद महाराज को इंस्पिरेशन लेना है. और प्रहलाद महाराज ही ऐसा एक प्योर डिवोटी है जिसको फॉलो करेंगे हम भी डिवोटी बन जाएंगे. प्रहलाद महाराज इतना पावरफुल डिवोटी है, ठीक है, इतना पावरफुल. एंड प्रहलाद महाराज का एज कितना है जब ये बात बोला है भगवान ने प्रहलाद महाराज के बारे में? 4 years to 5 years, इतना है. 5 साल का आदमी अगर बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, किसी और को इंस्पिरेशन भी बन सकता है, तो वो सिर्फ प्रहलाद महाराज है. इसलिए स्वयं भगवान ग्लोरीफाई किया प्रहलाद महाराज को. तो अगर हम बोलेंगे कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में हमको परिपूर्णता आया है, या भक्ति में हम लोग एडवांस रहे, अगर हम बोलेंगे, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई और हो ही ना सकता है ना. स्वयं भगवान अगर बोलेंगे ठीक है आई एम हैप्पी विथ योर भक्ति, इससे और कोई बड़ा बात है ना. तो प्रहलाद महाराज ने ऐसा किया है. क्यों किया है प्रहलाद महाराज ने? व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ प्रहलाद महाराज? प्रहलाद महाराज में ऐसा क्या है जिसकी वजह से स्वयं भगवान ने ऐसा बोलना?
ठीक है, वो आज प्रहलाद महाराज के बारे में आज सुनेंगे। ठीक है, सो बिफोर we get into the other part of the story, we will do the Narsimha prayers. Okay, then we will start. वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे. I worship Lord Narsimha, within whose mouth reside the great masters of uh, eloquence, upon whose chest resides the goddess of fortune, and within whose heart uh, resides the divine potency of consciousness. Okay, so today we are taking blessings of Narsimha Bhagwan. Let us pray him. And there is one more prayer. गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तम् रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तम् क्रन्धन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तम् वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि. Lord Narsimha roars loudly and causes others to roar. With his multitudes of arms, he tears the demons asunders and kills them in this way. He is always seeking out and people can read it. I cannot tormenting the demonic descendants of Diti, both on this earth planet and in the higher planets, and he throws them down and scatters them. He cries with great anger as he destroys the demons in all directions. Yet, with his unlimited hands, he sustains, protects, and nourishes the cosmic manifestation. I offer my respectful obeisances to the Lord, who has assumed the form of a transcendental lion. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Okay, today we are going to see Narsimha Katha from Srimad Bhagavatam, Canto number 7, chapter number 3 to 8. Okay, so this is in Narsimha Katha, Srimad Bhagavatam में दिया हुआ है. Actually, कोई भी भागवतम एक्चुअली 12 कैंटो का भागवतम है. इसमें 18 वॉल्यूम बुक्स हैं. उसमें कोई भी डिवोटी का कथा अगर दिया है तो ज्यादा से ज्यादा दिया तो एक चैप्टर 2 चैप्टर में दिया गया है. ठीक है, लेकिन प्रहलाद महाराज का कथा जो दिया गया है भागवतम में 10 चैप्टर्स में दिया है. 10 चैप्टर्स. तो मतलब भागवतम इतना इंपोर्टेंस दिया है कि प्रहलाद महाराज का कथा का, इसीलिए भागवतम में 10 चैप्टर में प्रहलाद महाराज का कथा दिया गया है. So that is important for us also to understand Prahlad Maharaj Katha. Otherwise, they could have not given 10 chapters, right? They could have just touched upon the Prahlad Maharaj Katha in one chapter or two chapters, and they have gone to next topic or next devotee, right? So 10 chapter में दिया मतलब it is very important for all of us. That's why it is mentioned. Okay. Okay. This is basically spoken by whom? This is spoken by, this whole katha is spoken by Narada Mahamuni. Okay. It is spoken with Yudhishthira, Dharmaraj. So what was the incident? What was the need for, क्यों नारद महामुनि ने धर्मराज से, युधिष्ठिर महाराज से ये कथा बात किया? एक्चुअली एक स्टोरी आया था कि श्रीमद् भागवतम में
राजसूय यज्ञ, ठीक है ना। राजसूय यज्ञ में लॉर्ड कृष्णा अ, इसको शिशुपाल को मारता है, ठीक है। जब शिशुपाल को मारा है, तब युधिष्ठिर महाराज ने देखा शिशुपाल भगवान कृष्णा में ऐक्य हो गया है, लीन हो गया है, मतलब ही मर्ज्ड इनटू द कृष्णा एज ए ज्योति। ओके, एक्चुअली ही गॉट सायुज्य मुक्ति, सॉरी सारूप्य मुक्ति, बट उन वो दिखाने में ऐसा दिखा कि वो ज्योति बनकर भगवान कृष्ण में ऐक्य हो गया है। यह धर्मराज ने देखा है। धर्मराज को डाउट आया है, क्यों ऐसा शिशुपाल जैसा असुर प्रवृत्ति आदमी मुक्ति मिला है, ठीक है। शिशुपाल तो एक पापी है, शिशुपाल तो भगवान को गाली दे रहा था और भक्त को गाली दे रहा था। तो अभी शिशुपाल को मारा है कृष्ण ने, इसके बाद शिशुपाल नरक में जाना चाहिए ना, लेकिन क्यों वो मुक्ति पाया है? तो ये डाउट आया है धर्मराज को। तब नारद मुनि वहीं पे था, तो नारद मुनि प्योर डिवोटी है, तो कोई भी और डिवोटी का कुछ डाउट आता है तो इमीडिएटली क्लैरिफाई करता है। तो इन्होंने क्लैरिफाई किया, शिशुपाल कोई नहीं है, भगवान का शुद्ध भक्त था। शिशुपाल जया विजया में एक था, जया विजया वैकुंठ में द्वारपाल था। इन दोनों में से चार कुमार ने उसको जब श्राप दिया है, वो ऐसा इस धरती में आके एक पाप जैसा पात्र पोषण कर रहा था। नहीं है तो ये दोनों जया विजया में एक था, ये बहुत बड़ा भक्त था। तो वो स्टोरी पूरा बोलते आया है। जब इनको श्राप दिया, एक्चुअली कुमारगण वैकुंठ जा रहा था, वैकुंठ द्वारपाल जो जया विजय है, वो चारों कुमार को श्राप किया, बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते, परमिशन नहीं है। तो कुमार ने उनको श्राप दिया है कि तुम लोग वैकुंठ में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वैकुंठ में सब सबके पास भगवान को एक्सेस सबका है, तो फिर आप कैसा द्वारपाल मुझे रुक सकते हैं। और अम, द्वारपाल को मालूम भी नहीं है ये कुमार कौन है, दिखने में छोटा बच्चा जैसा है, नंगा है, ठीक है। ऐसा अपवित्र ऐसा नंगा भगवान के सामने जाना अच्छा नहीं है, इसलिए जया विजय ने रोका है। तो जया विजय को दिया, श्राप दिया है। तब भगवान विष्णु ने जल्दी जल्दी बाहर आ गया, ठीक है, वैकुंठ तक, वैकुंठ द्वार के पास आया है भगवान, क्योंकि उसका भक्त जो है जया विजय को श्राप दे रहा था, चारों अ, महाजन। तो इमीडिएटली आया है, उसको बोला है कि कुमारगण तो श्राप दिया है, तो वो श्राप तो लेना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन दिया है भगवान विष्णु, आप 7 जन्म तक मेरा भक्त बनकर इस धरती में रह सकते हैं, या 3 जन्म तक मेरा विरोधी बनकर इस जन्म में आप मानव जन्म ले सकते हैं, वैकुंठ से बाहर जाना है, ठीक है। आप चुनो, 7 जन्म मेरा भक्त बनकर वैकुंठ छोड़ना है, या 3 जन्म मेरा विरोधी बनकर वैकुंठ छोड़ना है, कौन सा आपका अच्छा है? तो जया विजय ने बोला कि हम 7 जन्म आपको आपके बिना रह नहीं सकते हैं, 7 जन्म आपको छोड़ के रहना बहुत मुश्किल है। इवन इफ वी बिकम ए डिवोटी, अगर भक्त बनकर भी अगर आपको छोड़ के रहना है आपकी दूर, तो ये हमसे नहीं होगा। तो हम लोग बनेंगे आपका विरोधी, 3 जन्म में वापस आएंगे, जल्दी वापस आएंगे। ठीक है। तो इन लोग ने बन गया। तो फर्स्ट जन्म जो है, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु का जन्म, ठीक है। शिशुपाल का जन्म लास्ट में आता है, शिशुपाल के जन्म के बाद वो वैकुंठ चला जाता है, इसलिए सारूप्य मुक्ति मिलता है, ठीक है। वो लोग आए मतलब लीन नहीं होता है, ब्रह्मन में लीन होने जैसा, निराकार ब्रह्म में लीन होने जैसा वो लोग, ऐसा मुक्ति नहीं मिलता है उन लोगों को। तो वो लोग वापस चला जाता है वैकुंठ लोक में, ठीक है। तो हम लोग चर्चा में कथा में जाएंगे। तो एक समय में एक बड़ा आदमी था, उसका नाम था हिरण्यकशिपु। वो बहुत डेंजरस आदमी है, बहुत असुर है, बहुत बड़ा असुर है। ये ऐसा असुर है, वो इस धरती में आने से पहले ही उन्होंने आतंक मचाया। मतलब बिफोर इवन कमिंग टू द दिस अर्थ प्लैनेट, ही स्टार्टेड शोइंग हिज पावर। जब वो उसकी मम्मी का वूम्ब में था, तभी प्रलय आने जैसा पूरा धरती कंपित हो रहा था, और बारिश हो रहा था, और यू नो कहीं भी शांत नहीं था। तो ऐसा आदमी है वो इस धरती में आने से पहले ही ऐसा
इसका पावर दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है? तो अ, उसका मदर भी उसको डिलीवर करने के लिए मना किया। आप समझ लीजिए। ठीक है? तो अगर मैं ऐसे आदमी को अगर मैं जन्म देता हूँ, जन्म देने से पहले ये अगर इतना असर दिखा रहा है इस दुनिया में, तो अगर मैं जन्म देता हूँ तो क्या होता है इस दुनिया का? तो इसलिए मैं उसका जन्म नहीं दूंगा। क्योंकि हिरण्यकशिपु को अपना गोद में ही रख दिया, अपना अपना पेट में ही रख दिया 1000 साल। हिरण्यकशिपु इस भूमि में आने से पहले 1000 साल उसका मम्मी का पेट में था। तो उसका मम्मी भी मना किया उसको बाहर लाने के लिए। लेकिन वो अंत में इतना पावर दिखा रहे ना, तो इससे अच्छा उसको जल्दी आने दो, जल्दी जाने दो। ठीक है ना? तो बाकी सब नारद मुनि, बाकी सब डिवोटीज, सब इन्होंने, इवन देवतास भी यू नो टॉर्चर सहन नहीं पाया हिरण्यकशिपु का। एंड हिरण्याक्षा भी है उसका भाई। एक ही आदमी इतना पावरफुल है तो उसका भाई भी और पावरफुल है। तो दो पावरफुल आदमी अगर इस धरती में आएगा तो क्या होगा इस धरती का? तो ऐसा आदमी में एक आदमी है, आप देख सकते हैं उस फोटो में, तो कितना पावरफुल दिख रहा है। ठीक है? ठीक है, हिरण्यकशिपु। तो उनकी उसका मम्मी ने जन्म दिया है, आया है। ठीक है? तो जब आया है, उसका विश था कि उसको और पावरफुल बनना है। ऑलरेडी पावरफुल है। ठीक है? उसका इतना पावरफुल है कि उसका आंख हिलने से ही पूरा धरती कांप जाते हैं। और देवता भी शिवर हो जाता है। ठीक है? देवता भी शिवर हो जाता है और पूरा दुनिया हिल जाता है। ऐसा आदमी है। ठीक है? तो उसको वो पावर कम हो गया। उसको और पावर चाहिए। जो आदमी ज्यादा पावरफुल है ना, उसको और पावर चाहिए तो वो क्या करता है? और बहुत बड़ा-बड़ा तपस्या करते हैं। तपस्या करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, ताकि उसको और पावर्स मिल जाता है। तो उस पावर से क्या करना है? उस पावर से पूरा दुनिया को रूलिंग करना है। तो हिरण्यकशिपु भी ऐसा ही आदमी है, जो और पावर के लिए तपस्या करना शुरू किया है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये था इसका मंत्र। किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? किसको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हैं? ब्रह्मदेव को तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। और जब ये तपस्या कर रहा था, उसका पोस्चर कैसा था? तो उन्होंने वो तंब है ना, लेग का तंब जो है ना, तंब में कड़ा है, दोनों तंब में कड़ा है, अंगूठा में कड़ा है। ठीक है? वो अंगूठा में कड़ा है, पूरा पूरा पैर उठाया है, उठा के और दोनों हाथ ऊपर किया है। ठीक है? दोनों हाथ ऊपर किया है। ये पोस्चर में कोई 5 मिनट रह सकते हैं? 5 सेकंड रह सकते हैं? कर ही नहीं सकते। तो इतना मेहनत का पोस्चर इन्होंने लिया है। आप इधर देख सकते हैं फोटो में। तो वैसा पोस्चर लिया है और तपस्या शुरू किया है। कितना साल किया है तपस्या ऐसा? 100 देवता साल, 100 देवता ईयर्स। तो 100 देवता ईयर्स मतलब हमारा टाइम कितना होता है? 36,000 ईयर्स। 36,000 ईयर्स उन्होंने वही पोस्चर में उन्होंने तपस्या किया है। वही पोस्चर में 36,000 ईयर्स तपस्या किया है। समझ लीजिए उस वो कितना कठोर तपस्या किया है। ठीक है ना? इतना तपस्या किया है। सो क्यों किया है कि उसको और पावर्स ज्यादा चाहिए था, इसलिए वो तपस्या किया। उसके बाद क्या हुआ है? उसकी तपस्या से क्या हो गया है? पूरा ब्रह्मांड जल रहा था। उसका उसका सर से आग निकल रहा है। उसका सर से आग निकल रहा है, उतना तपस्या कर रहे हैं, तो पूरा ब्रह्मांड को एक किया है। पूरा सर से आग निकल रहा है, पूरा प्लैनेट्स वगैरह एक्सट्रीमली ना जल रहा था। ठीक है? तो अम, तो पूरा देवता को सफिकेशन हो रहा है। ठीक है? पूरा देवता उसका अपना फंक्शनिंग मतलब बंद हो गया। तो सफिकेशन हो रहा है। तो सारा देवता ब्रह्मदेव के पास गया है। तो ब्रह्मदेव को बोला कि देखो क्या हो रहा है, पूरा यूनिवर्स जल रहा है करके ब्रह्मदेव को बोला है। तो ब्रह्मदेव ने बोला आप लोग चिंता मत करो, कोई एक मेरा भक्त है वो जो तपस्या कर रहे हैं, मैं जाके उसको
स्टॉप कर दो, ताकि पूरा यूनिवर्स नॉर्मल हो जाएगा। तो इन्होंने, ब्रह्मदेव ने गया है हिरण्यकशिपु को देखने के लिए। जब ब्रह्मदेव हिरण्यकशिपु को देखने के लिए गया है, हिरण्यकशिपु दिख नहीं रहा था, कहीं भी दिख नहीं रहा था। लेकिन ओम ब्रह्मदेवाय नमः वो मंत्र तो सुनाई दे रहे हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु कहीं दिख नहीं रहा था। उसका बॉडी कवर हो गया एंट हिल से, और उस एंट हिल में बैम्बू स्टिक्स आ गया। ठीक है, मतलब पूरा, मतलब ये बन गया, पेड़ आ गया। तो वो कहाँ है वो भी दिख नहीं रहा था। और क्या हो गया कि ये हिरण्यकशिपु का शरीर जो है हिल नहीं रहा है ना, तो वो जो एंट हिल से, एंट्स जो होता है ना, एंट्स ने काट के उसका पूरा खा लिया, बॉडी पूरा खा लिया। तब भी इन्होंने तपस्या से बाहर नहीं आया, समाधि स्थिति से बाहर नहीं आया। तो इतना तपस्या कर रहा था, तो बॉडी है ही नहीं है, फ्लश है ही नहीं है, बचा क्या है? हड्डी बचा है, सिर्फ हड्डी बचा है। तो उसका प्राण हड्डी में रखा है, उसका प्राण, हिरण्यकशिपु ने अपना प्राण को हड्डी में रख के तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मदेव प्रसन्न होने तक। तो ब्रह्मदेव उधर आके पूरा ढूंढ लिया, पूरा फॉरेस्ट पूरा ढूंढ लिया, तो कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो जन ब्रह्मदेव ने समझ लिया है कि उसको ढूंढना मुश्किल है करके, उन्होंने फिर जो मंत्र सुन रहा था, वो मंत्र से उन्होंने ढूंढना शुरू किया, वो शब्द से। तो वो शब्द से उनको समझ में आया कि वो इधर है। तो इमीडिएटली उसका कमंडल से पानी लिया है, तो कमंडल का पानी उधर डाल दिया है। तब क्या हो गया? हिरण्यकशिपु का बॉडी नॉर्मल हो गया, हिरण्यकशिपु नॉर्मल बन गया। तो जब हिरण्यकशिपु नॉर्मल बन गया, ब्रह्मदेव ने बोला कि हिरण्यकशिपु मैं प्रसन्न हूँ आपकी तपस्या से, आपको मैं वरदान देता हूँ। हिरण्यकशिपु का क्या वरदान मांगने वाला है हमको पता ही है। उसको और शक्ति चाहिए, और बड़ा आदमी बनना है, और पूरा लोग को रूलिंग करना है, तीनों लोग को रूल करना है। ठीक है, तो अम, अम, तो देन हिरण्यकशिपु ने उसको वरदान पूछा है। क्या वरदान पूछा है? मेरे को अमर बनना है। ठीक है, तो ये अमर तो कोई बना नहीं सकते। तो ब्रह्मदेव ने बोला कि मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं आपको अमर कैसा बनाऊं? ठीक है, मैं आपको अमर नहीं बना सकता, तो आप कोई और वरदान पूछो। तो हिरण्यकशिपु ने ये वरदान पूछा है। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि मेरे को कोई मार नहीं सकते, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। ठीक है, ना दिन में ना रात में। ठीक है, ना धरती में ना आकाश में, ना कोई अस्त्र शस्त्र से मार सकते हैं। ठीक है, ना कोई आदमी मार सकते हैं, ना कोई देवता मार सकते हैं। ठीक है, ना ना कोई ह्यूमन बीइंग मार सकते हैं, ना कोई एनिमल मार सकते हैं। ठीक है, ऐसा वरदान दे दो कचित। तो अगर ये वरदान दिया, मान लो कि इसमें कुछ क्लास बचा है क्या जिससे वो आदमी मार सकते हैं? ऐसे क्लॉजेस रखा, मतलब इतना सारा वरदान पूछा है कि एक ही वरदान में सब कुछ मिल गया। तो हम भी बोलते हैं ना, हमको हमको भी बहुत सारा विशेष होता है, भगवान के पास जाएंगे तो एक ही विश पूछते हैं क्या? हम्म? तो भगवान बोलता है कि एक विश पूछो, मैं एक विश पूरा करूंगा। तो हमको ऐसा एक विश पूरा पूछना है जिससे हमारा पूरा विश है ना फुलफिल होना चाहिए, ऐसा विश पूछते हैं। तो हम एक ही विश पूछते हैं, कैसा? मेरा मन में जो भी कोई ना डिजायर्स है वो सब कुछ फुलफिल होना चाहिए, ये एक ही विषय है ना। तो एक ही विश पूछते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो है, तो हमारा जो भी इच्छा है वो पूरा पूरी हो जाए, ऐसा विश पूछा है हिरण्यकशिपु ने। तो हिरण्यकशिपु ने कोई मार ही नहीं सकता वैसा लॉजिक बना के उन्होंने वरदान मांगा है, तो ब्रह्मदेव ने वरदान दे दिया है। तो अभी पहले से भी शक्तिमान बन गया हिरण्यकशिपु, पहले ही बहुत बड़ा शक्तिमान है। ठीक है, माँ का पेट में रह के ही शक्ति दिखा दिया इन्होंने, तो बाहर आने के बाद और शक्ति दिखाया। अभी तपस्या करके अमर भी बन गया मोर और लेस, और शक्ति दिखाना शुरू कर दिया। तो पूरा साधु जन को मारना शुरू कर दिया, और सबको बोलना शुरू किया कि मैं खुद भगवान हूं। और कोई भगवान नहीं है, मैं खुद भगवान हूं। और कोई, और रूल्स पूरा चेंज कर दिया। पहले रूल्स ऐसा था, जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो पाप करेगा वो नरक जाएगा। तो हिरण्यकशिपु का रूल्स ऐसा हो गया कि जो पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा,
जो पुण्य करेगा वो नरक जाएगा। ठीक है, ऐसा रूल्स। असुर है ना, तो असुर का रूल्स ऐसा ही होता है। ठीक है, क्योंकि अभी भगवान को पूजा नहीं करना है, इस असुर को पूजा करना है, ये तो पाप है। वो बोलता है अगर मेरे को पूजा करेगा आपको स्वर्ग मिलेगा, तो मतलब पाप करेगा तो स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसा करना शुरू किया, तो सबका एक मंत्र दे दिया है, सबको क्या बोलना है, हिरण्यकशिपु की आप सब। ठीक है, हाँ, तो ऐसा रूल बना दिया है, सबको हिरण्यकशिपु की जय बना दिया। ठीक है, जय बोलना शुरू कर दिया। तो, तो फिर ये ऐसा रूल बना दिया। तो फिर पूरा जो भी अगर हिरण्यकशिपु को मना कर रहे हैं, भगवान बोलने का मना कर रहे हैं, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। तो ऐसा इन्होंने पूरा यूनिवर्स को इन्होंने अपना कब्जा में ले लिया है। ठीक है, ना कोई देवता, ना कोई अच्छा आदमी, ऐसा कोई नहीं है। इवन देवता लोग भी हिरण्यकशिपु का कंट्रोल में आया है। अगर हिरण्यकशिपु बोलता है बारिश होना है तो बारिश हो जाएगा, हिरण्यकशिपु बोलता नहीं बारिश बंद होना है, बारिश बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जो चाहिए वो हो रहा था, तो उतना शक्तिमान बन गया है। तो पूरा देवता उससे अच्छा नहीं है, तो देवता को परेशान है। तो देवता ने क्या किया, तो ब्रह्मदेव के पास गया। देवता को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है कहाँ जाता है, मूवी में देख रहे हैं ना। ठीक है, ब्रह्मदेव के पास जाता है। विष्णु भगवान इतना आसान से मिलता नहीं है। ठीक है, उन सब में, उन सबको जो इजीली एक्सेसिबल है उसके पास चला जाता है। उस की वजह से ये पूरा नुकसान है ना। ब्रह्मदेव ही दे दिया है ना ये वरदान हिरण्यकशिपु को, तो ब्रह्मदेव के पास ही गया है पूरा देवता। तो पूरा देवता ब्रह्मदेव के पास जाके पूछा कि आप देखो हिरण्यकशिपु ने क्या कर रहे हैं, हमको जीने नहीं दे रहे हैं। तो फिर सब मिलके ब्रह्मदेव ने बोला, ब्रह्मदेव, शिव, देवता सब मिलके आ, श्वेत समुद्र, समुंदर, ठीक है, तो विष्णु के पास गया है। तो विष्णु के पास जाके कुछ साल तक प्रार्थना करते रहा, सब लोग, ब्रह्मा, शिव, देवता, सब लोग कुछ साल तक प्रार्थना करते रहा। सो दैट इज कॉल्ड मिल्क ओशन। ठीक है, वो मिल्क ओशन में रहता है। तो कुछ कुछ दिन के बाद वहां से कोई शब्द आया है, दिखा नहीं है, विष्णु भगवान ने दिखा नहीं है। तो विष्णु भगवान ने बोला है उन लोगों को, आप लोग चिंता मत करो, ये मेरा लीला है, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, मैं बहुत जल्दी आके हिरण्यकशिपु को मारूंगा, तब तक आपको पेशेंस ही रखना है। ठीक है, तब तक आप लोग सावधान रहो, बस टाइम पास करो, तब तक मैं आने तक, मैं जल्दी आऊंगा, ये बात बोल दिया। तो ये वरदान देने के बाद भगवान ने फिर बोल दिया, फिर इसके बाद हिरण्यकशिपु का अपना डेली एक्टिविटीज कंटिन्यू होते रहा। हिरण्यकशिपु का 4 सन है। ठीक है, चारों बहुत बड़ा आदमी है, ग्रेट इंटेलिजेंस। ठीक है, ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं है, कोई एक कलेक्टर का गिच्चा, कलेक्टर जितना इंटेलिजेंस तो होता है, कलेक्टर भी बन जाता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर भी बन जाता है ना। तो फिर हिरण्यकशिपु का बच्चा क्या बनना चाहिए, हिरण्यकशिपु बनना चाहिए ना। तो बाकी चारों बच्चों में तो 3 बच्चा हिरण्यकशिपु जितना बड़ा हो गया, हिरण्यकशिपु जैसा ही बिहेव कर रहा है। लेकिन इसमें से एक बच्चा है, वो प्रहलाद महाराज है, हिरण्यकशिपु जैसा नहीं बना। ठीक है, हिरण्यकशिपु का ऑपोजिट बना है। पूरा विश्व हिरण्यकशिपु का गुणगान कर रहा था, लेकिन प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को गुणगान नहीं कर रहे हैं, भगवान विष्णु का गुणगान कर रहा था। ठीक है, तो हिरण्यकशिपु का क्वालिटी, सॉरी, प्रहलाद महाराज का क्वालिटीज अगर देखेंगे, एक्चुअली प्रहलाद महाराज इतना अच्छा आदमी है, फिर भी हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से गुस्सा करता है। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि प्रहलाद महाराज का क्वालिटीज क्या है। ये है प्रहलाद महाराज का क्वालिटीज। प्रहलाद महाराज हैज फुल कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस। कितने लोगों के पास है ये, है ना। मतलब आपके पास रसगुल्ला रखा तो भी नहीं खाता है, खाता है क्या, खाता है नहीं खाता है, हाँ? खाते हैं ना, 5 मिनट देख के मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा बोल के फिर लेके खाते हैं। जितना ज्यादा बार बोलेंगे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, उतना ज्यादा खाने का मन लगता है ना।
लेकिन प्रहलाद महाराज जी के पास कितना भी रसगुल्ला रसगुल्ला रखो, वो नहीं खाएगा। इतना कंट्रोल है उसका सेंसेस पे, उसका माइंड पे भी उतना कंट्रोल है। और ही इज काइंड एंड बेस्ट फ्रेंड टू ऑल। उसकी कोई विरोधी नहीं है। ही इज फ्रेंड टू एवरीबडी। ही इज नेवर एनवियस। ईर्ष्या नहीं है इसके पास। ही इज अ सर्वेंट टू एल्डर्स। सबको सेवा करता है। ठीक है। एंड ही इज अ फादर टू पूर। ठीक है। मतलब जो भी है, पूर लोग हैं उसको पिता जैसा देखता है। एंड ही इज अ ब्रदर टू इक्वल्स। एंड ही रेस्पेक्ट्स टीचर्स। एंड ही इज फ्री फ्रॉम प्राइड। उसका कोई गर्व नहीं है। और उसका कोई इच्छा नहीं है, मेटेरियल डिजायर ही नहीं है। अगर ऐसा बच्चा हमको है तो क्या करते हैं हम लोग? हम मारते हैं। हाँ? तो हिरण्यकश्यप मारना चाहता है ऐसा बच्चा को। इतना अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा है कि नहीं है? हाँ? इतना अच्छा बच्चा है, इसको मारना चाहता है 5 साल का वही उम्र में। ठीक है। तो यही डाउट इवन युधिष्ठिर महाराज को भी आया है। अगर प्रहलाद महाराज इतना अच्छा बच्चा है, प्रॉब्लम क्या है हिरण्यकश्यप का? है ना? Why should Hiranyakashipu should get angry on such a person? If our person is like our son is like that, then we will be very happy, right? But हिरण्यकशिपु क्यों ऐसा है? तो फिर नारद मुनि ने बाकी स्टोरी बोलना शुरू कर दिया। ठीक है। क्यों मारना चाहता है वो बोल रहा है। इसका एज 5 साल हो गया। तो 5 साल की उम्र में हम भी क्या करते हैं, हमारे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। ठीक है। एजुकेशन के लिए। तो वैसा ही हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में भेजना चाहता है। उस टाइम पे गुरुकुल था। तो गुरुकुल में टीचर्स कौन है? शुक्राचार्य का दो सन, शंडा और अमरका। ये दोनों है शुक्राचार्य का दो सन। इन दोनों सन के पास, इन दोनों शुक्राचार्य का बच्चों के पास भेज दिया हिरण्यकशिपु पढ़ाई के लिए। तो हिरण्यकशिपु ने जब भेजा है प्रहलाद महाराज को, तो प्रहलाद महाराज कुछ दिन उधर पढ़ की, उसके साथ बाकी असुर बच्चा भी था। बाकी सब असुर है ना, तो पूरा दुनिया को असुर बना दिया हिरण्यकशिपु ने। क्योंकि सब हिरण्यकशिपु को गुणगान कर रहे हैं, तो सब असुर लोग ही हो गया। तो असुर का बच्चा बाकी लोग भी आ गया है उन सब के साथ। पढ़ के कुछ दिन के बाद समर हॉलीडेज हो गया। समर हॉलीडेज में घर पे आ गया। ठीक है। उस टाइम पे घर पे रह की पढ़ाई नहीं करते हैं, गुरुकुल में जाके पढ़ाई करके हॉलीडेज में घर पे आते हैं। ठीक है। तो वैसा ही प्रहलाद महाराज भी वापस आ गया है हिरण्यकशिपु की घर पे। तो जब वो घर पे आया है, तो उतना छोटा बच्चा है, फादर ने उसको गोद में ले लिया प्यार से। हाँ। तो हम भी क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा है आपका पढ़ाई, कैसा रहा, पूरा साल कैसा बीता, फ्रेंड्स कैसा हुआ, ये सब कुछ पूछते हैं ना। तो वैसा ही फादर भी उसको गोद में लेके प्यार करते हैं। मतलब इसका हाथ तो उसका सर पे रखा, ऐसा ऐसा कर रहा था, बच्चा है ना। और बीच बीच में किस कर रहा था। हाँ? और बीच में पूछा, चलो आप ये 1 साल पढ़ाई करके आया, तो अभी बोलो आप बेस्ट क्या सीखा है, आपने जो सीखा है उसमें बेस्ट क्या है। तो प्रहलाद महाराज ने बेस्ट क्या है सीखा, वो बोला है। क्या बोला है प्रहलाद महाराज ने? पापा ये पूरा दुनिया जो है, ये दुनिया में पूरा दुख ही दुख है। दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं है, पूरा दुख ही है। ठीक है। अगर इस दुख से बचना है, आप लॉर्ड कृष्णा को शरण लेना है, ये बोला है। तो नरसिम्हा भगवान, सॉरी, हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं मैं खुद भगवान हूं, सब मेरे को शरण लेना चाहिए। तो आप क्या अच्छा सीखा है, क्या बेस्ट सीखा है बोला, तो बेस्ट हिरण्यकशिपु को वर्शिप करना बोलना चाहिए। क्योंकि शंडा अमर का जो दो टीचर्स था, उनको कौन अपॉइंट किया है? हिरण्यकशिपु ने। उसका सिलेबस कौन दिया है? तो उसमें सिलेबस में लेसन्स क्या होता है? हिरण्यकशिपु के बारे में होता है ना। तो हिरण्यकशिपु के बारे में सुन के, हिरण्यकशिपु के बारे में पूरा 1 साल पढ़ के आके बोलता है
कि कृष्ण को शरण ले लो, तब आप बचते हैं, नहीं है तो आप नहीं बचेगा। तो ये गुस्सा आने वाला बात है कि नहीं है? हैं? गुस्सा आ गया। तो इमीडिएटली इन्होंने प्रहलाद महाराज को बोला, अम, तू वापस जाओ गुरुकुल में और पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई ठीक से मतलब टीचर्स कुछ बोल रहे, तुम कुछ और सुन रहे होगा। ठीक है, या टीचर्स जो बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तुम। ठीक है, टीचर्स को बुलाया है, शंडा अमरका को बुलाया है। ठीक है, बोला क्या पढ़ाई करवा रहे तुम मेरा बच्चा से। ठीक है, वो बोल रहे कृष्णा को शरण ले लो, पूरा दुनिया मेरे को शरण लिया है। ठीक है, तुम लोग ठीक से अच्छा पढ़ाई करवा के लेके आओ, नहीं है तो तुम दोनों को मार दूंगा मैं। ठीक है, तो फिर गया है हिरण्यकशिपु को लेके प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज को लेके शंडा अमर का वापस बिल्कुल लेके गया है, और कुछ साल पढ़ाई करवाया, और कुछ साल पढ़ा, मतलब थोड़ा ग्रेजुएशन तक लेके आया, मतलब 5 साल का बच्चा ही है, लेकिन ज्यादा फोकस दिया है, ज्यादा सुनने के लिए बोला है। तो कुछ साल के बाद फिर उन्होंने बोला, एक्चुअली शंडा अमर का भी पूछा है, क्या बात कर रहे तुम, सब हिरण्यकशिपु को गुणगान करता, आप क्यों हरि 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 बोलते हो, कौन है ये हरि। वो हरि के बारे में कुछ सुनाए, मतलब सुना था। फिर इसके बाद शंडा अमर ने प्रहलाद महाराज को पूरा टीचिंग करके वापस कुछ दिन के बाद प्रहलाद महाराज को घर भेज दिया है। इस बार जब घर भेजा है, सीधा फादर के पास नहीं भेजा है, पता है ना शंडा अमरका को, सीधा घर के पास पहले उसको भेजा है मदर के पास। मम्मी को बोला है, हम तो जो बोलना है बोल दिया, आप भी थोड़ा बोल दो, हिरण्यकशिपु के पास जाने से पहले थोड़ा समझा दो क्या बोलना है, हिरण्यकशिपु क्या क्या क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा प्रिपेयर कर दिया, आपका पापा क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा पहले ही लिस्ट बना के दे दिया है। ठीक है, प्रिपेयर करो। कौन है भगवान? हिरण्यकशिपु। किसको कीर्तना करना है? हिरण्यकशिपु को कीर्तना करना है। किसको शरण लेना है? हिरण्यकशिपु। ये सब कुछ क्वेश्चंस दिया, आंसर्स भी दिया है। पूरी लिस्ट बना के दे दिया है। फिर होमवर्क के लिए मम्मी के पास भेज दिया। मम्मी को बोला है कि आप भी थोड़ा प्रिपेयर करवा दो हिरण्यकशिपु के पास भेजने से पहले। एग्जाम एग्जाम टाइम आ गया है अभी, क्योंकि ये एग्जाम प्रहलाद महाराज का नहीं है, शंडा मरका का है। ठीक है, अगर प्रहलाद महाराज फेल हो गया इस एग्जाम में, इज इक्वल टू शंडा मरका फेल, है ना। तो इसलिए उसका मम्मी का मदद भी लिया है। तो मम्मी ने बहुत साल के बहुत दिन के बाद अपना बच्चा आ गया प्रहलाद महाराज, तो उसको पहले प्यार से ले लिया और स्नान करवाया है, अच्छा कपड़ा पहना है, और बच्चा को अच्छा अच्छा दिखने जैसा करे। स्कूल में जाके आया है ना, ठीक से नहाया नहीं है, ठीक से मुंह मुंह नहीं धोया है, तो आने के बाद कुछ दिन मम्मी का जो होता है वो कर दिया। तो इसके बाद फिर पूरा अलंकरण करके फिर जो बोलना है सब कुछ सिखा के फिर हिरण्यकशिपु के पास भेज दिया है। सो जब हिरण्यकशिपु के पास भेज दिया है, तो प्रहलाद महाराज के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी सुना है क्या क्या क्वालिटीज हैं। बड़ों को इज्जत देता है ना, बड़ों को रिस्पेक्ट करता है। तो प्रहलाद महाराज ने नरसिम्हा, सॉरी, हिरण्यकशिपु का पाद चरण किया है, तो पाद को मतलब चरण स्पर्श किया है, और ओबिसेंसेस करके फिर उन्होंने नमस्कार किया है। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने उसका फिर वापस प्रेम से उसका गोदी में लिया है। ठीक है, प्रेम से वापस गोदी में, बच्चा है ना, तो अगर उसकी प्लेस में अगर कोई और होता है तो हिरण्यकशिपु अभी तक मार देता है, लेकिन अपना बच्चा है, मार नहीं सकते हैं। तो वापस प्यार से उसका अपना गोदी में लिया है, सेम क्वेश्चन पूछा है, कोई डिफरेंस नहीं, सिलेबस चेंज नहीं है। सिलेबस सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, वापस सेम क्वेश्चन पूछा है, बच्चा आप क्या बेस्ट सीखा है, जो बेस्ट आपका गुरु से जो सीखा है, पहले गुरु से जो सीखा है वो नहीं पूछा है ना। तो इस बार इन्होंने पूछा कि आप अपना गुरु से जो बेस्ट सीखा है वो क्या है, मुझे बोलो। तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, आप सब रिपीट कीजिए मेरे साथ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम्।
अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम्। कोई माता जी रिपीट करेगा? श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम्। अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यं पादलेखनम्। प्रभु जी कोई? श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम्। अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यं मणिवेगम्। सो ये चीजें बोल दिया है, थोड़ा चेंज किया है। क्वेश्चन सेम है, आंसर चेंज है। मतलब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया ना, और थोड़ा ज्यादा सीखा है, और थोड़ा मेच्योरिटी ज्यादा आ गया है, रियलाइजेशन बढ़ गया है। तो उस ज्यादा रियलाइजेशन के साथ ये बोल दिया है कि ए प्योर डिवोटी बन जाओ, बोल दिया इस बार। ठीक है, प्योर डिवोटी बनने के लिए आपको नवविध भक्ति करना है। नवविध भक्ति, दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विसेज। ठीक है, श्रवणम अभी हम सब जो कर रहे हैं वो श्रवणम है, ये भी एक डिवोशनल सर्विस है। ठीक है, दूसरा कीर्तनम, कीर्तन भी हम करते हैं, जो बोलते हैं वो ये कीर्तनम है। दूसरा विष्णु स्मरणम, श्रवणम करना है, कीर्तनम करना है, क्या करना है इसके बाद? We keep remembering the same thing. Whatever you are hearing, whatever you are talking, you will remember the same thing. And here the smaranam is about Vishnu smaranam. That means the Shravanam and Kirtan is also about Vishnu. Whatever you hear, whatever you speak is what you remember. ठीक है? Then you do Pada Sevanam, serving the Lord. इसे कर सकते हैं पाद सेवनम, आप सबको मौका मिलता है पाद सेवनम करने का। विष्णु भगवान का पाद सेवन करना है, मिलता है आपको? लक्ष्मी देवी आपको देगा चांस? लक्ष्मी देवी आपको चांस नहीं देगा। तो पाद सेवनम कैसे करना है? हम्म? पाद सेवनम हमको ऐसा करना है, हम अपना पाद यूज करके आपको भगवान को सेवा करना है। यूज योर फीट टू वर्शिप द लॉर्ड, टू सर्व द लॉर्ड। कैसे करना है? हम्म? यात्रा करना है, धाम में यात्रा करना है, परिक्रमा करना है, ये भी पाद सेवनम है। ठीक है, तो भगवान का धाम जाते हैं ना हम लोग, हाँ, इसलिए धाम यात्रा करना बहुत जरूरी है। यात्रा में जाना भी एक डिवोशनल सर्विस है। ठीक है, ये मटेरियल एक्टिविटी नहीं है, प्लेस देख के आना नहीं है, वहां पे जाके आना है, भगवान का दर्शन लेना है, वहां का भक्त का संग लेना है, वहां भक्त से सुनना है। ये चीजें भक्ति है, डिवोशनल सर्विस है, इसलिए पाद सेवन करना है। इसके बाद अर्चन, डीडी वर्शिप, ठीक है, जो हम कर रहे हैं। इसके बाद वंदनम, नमस्कार करना है, भगवान का साष्टांग नमस्कार करना है। इसके बाद दास्यम, सेवा करना है, सर्विस। इसलिए हम लोग सर्विस भी करते हैं ना, क्लास होते ही प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेने के बाद बहुत माता जी से इधर ही रहे कि हाँ, पूरा फ्लोर क्लीन करना है, मैट्स उठाना है, और पूरा सर्विस करते हैं ना, दिस इज ऑल सेवा। ठीक है, तो ये सेवा करते हैं। और इसके बाद साख्यम, विथ माई फ्रेंड, ठीक है, विथ गॉड, एंड यू बिकम ए बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद आत्मनिवेदन, ऑफर योर सेल्फ। ठीक है, इन सबका एक एक you know example devotees भी है। Next time when we talk exclusively about Navavidha Bhakti, we will talk about each devotee who have exhibited these qualities or who served Lord with each one of these। ठीक है, तो ये सुनकर फिर नरसिम्हा ने क्या कहा है, सॉरी प्रहलाद महाराज का ये बात सुन के बहुत गुस्सा आया है। ठीक है, और गुस्सा आया है। तो फिर हिरण्यकशिपु ने उसको बहुत गाली भी दिया है, गाली भी दे कि पहले उसका गोद में था, कैसा था गोद में, प्यार से बिठाया, देखो कैसा प्यार से बिठाया इधर, है ना, इतना प्यार से बिठाया है इधर। और इधर देखो, इधर कितना प्यार से बिठाया है?
उसको फेंक रहा था उसका गोदी से बाहर। ठीक है। उसका बच्चा, जब उन्होंने बोला कि आप नवविध भक्ति करो, सिर्फ एक एक टाइम भक्ति नहीं है, नवविध भक्ति करना है, तभी आप बचेगा इस मटेरियल वर्ल्ड से, दुखालयम अशाश्वतम, उससे बचेगा बोला। तब हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया है, और विथ हिज एंगर उसका गोदी में से निकाल के फेंक दिया है उसका धरती में। तो फिर और उसको बोला, अम, बाकी उधर जो सेवक होता है ना, उन सबको बोल दिया उसको लेके जाओ इधर से, मेरे से दूर लेके जाओ, मेरे सामने रख मत रखो, ये मेरे सामने खड़ा रहने के लिए भी लायक नहीं है, उसको दूर में लेके जाओ और उसको मारो, और उसको मारो। एक्चुअली वो खुद मार सकता था, लेकिन उसका बच्चा होने के नाते वो मार नहीं पाया, उन्होंने किसी और को दे दिया, बोल दिया उसको मारो। तो बाकी असुर ने प्रहलाद महाराज को लेके गया है, लेके जाके उसको मारना शुरू किया है। कितना तरीका से मारना शुरू किया आपको पता ही नहीं है। जितना डिफिकल्टीज एक आदमी को हो सकता है इस दुनिया में, उतना से ज्यादा डिफिकल्टीज एक प्रहलाद महाराज को 5 साल का उम्र में उसका पिता ने दिया है। कोई और बाहर का आदमी नहीं है, कोई विरोधी नहीं है। ठीक है। उसको अपना पिता दिया है। उसको आ, उसको हाथी का वो हाथी का नीचे रखा है, मतलब हाथी का ऊपर से चढ़ा दिया है, फिर भी प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं हुआ। और उसको ऊपर से फेंका है, नीचे पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंका है, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी उसका बॉडी कितना टेंडर, उतना होता है, मतलब बच्चा है ना, उसको त्रिशूल से किया है, मतलब पियर्स किया है, फिर भी प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। तो इतना ही बस नहीं है, और क्या क्या किया है, उसको पॉइजन दिया है, उसको खाना नहीं दिया है, उसको भूखा रखा है, और उसको फंड में रख दिया है, फंड का विंड है जो होता है उसमें रख दिया है, और उसको फायर में रख दिया है, उसको पानी में फेंक दिया है, और उसको बड़ा बड़ा पत्थर लेके उसका ऊपर फेंक दिया है, उसका मतलब कैसा भी करके मारना है करके। ठीक है। कुछ भी किया है, भगवान की रक्षा उसके पास है, क्योंकि वो प्योर डिवोटी है। भगवान ने क्या बोला है, हाँ? आपको जो नहीं है वो मैं देता हूं, आपको जो नहीं है वो भी मैं देता हूं, आपको जो है वो भी मैं रक्षा करता हूं। अगर आप 100% भगवान का सरेंडर होगा, आपकी रक्षा भगवान है। राके कृष्णा मारे को, मारे कृष्णा राके को। अगर भगवान मारना चाहता है, कोई बचा नहीं सकते उसको। अगर भगवान बचाना चाहता है, तो उसको कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। इसलिए टोटल 13 टाइम्स, 13 तरीका का कोशिश किया है प्रहलाद महाराज, 5 साल का बच्चा को मारने के लिए पूरा असुर लोग मिलके 13 तरीका से मारने के लिए कोशिश किया है, फिर भी प्रहलाद महाराज का बॉडी में एक स्क्रैच नहीं लगा, एक स्क्रैच नहीं लगा। कोई भी वेपन, कुछ भी प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं कर पाया। तो फिर और गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया, प्रहलाद महाराज को अग्नि में भी रख दिया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्यों? ठीक है। तो फिर हिरण्यकशिपु को फिर और गुस्सा आ गया, तो षंड अमर्क ने उधर आ गया। तो हिरण्यकशिपु ने एक किसी को भी मार सकता है, लेकिन अपना बच्चा 5 सदी का छोटा है, उसको मार नहीं पा रहे, तो इससे और गुस्सा आ जाएगा। तो षंड अमर्का को लगा कि उसको और गुस्सा आएगा तो और डेंजर हो जाएगा, करके उसको थोड़ा पैसिफाई करने के लिए षंड अमर्का आके बोला कि उसको और थोड़ा टाइम दो, हम वापस लेके जाएंगे, हम वापस लेके जाके हम और थोड़ा सुधार के लेके आएंगे उसको। एक्चुअली इसको लेके नहीं जाना चाहिए था, इधर ही जो भी बातें खत्म करना चाहिए था, लेकिन इस बार शंडामर्क ने बोला कि आप गुस्सा मत करो, आपको जैसा बच्चा चाहिए वैसा बच्चा बना के लेके आएंगे आपका बच्चा को। ठीक है। तो वापस लेके गया, तो वापस लेके जाके फिर गुरुकुल में पढ़ाई करवाना शुरू किया। इस बार प्रहलाद महाराज ने पूरा असुर बच्चों को भक्त बना के आया। अभी तक वो एक ही भक्त था, अभी तक पूरा विश्व में
हिरण्यकशिपु के अलावा किसी और को गुणगान कर रहे हैं, वो कौन से? वो सिर्फ एक ही आदमी है, वो प्रहलाद महाराज है। अभी इस बार प्रहलाद महाराज को गुरुकुल लेके गया, प्रहलाद महाराज के साथ साथ हजार और बच्चा गुणगान करना शुरू किया है लॉर्ड कृष्णा। अभी और गुस्सा आएगा, कम गुस्सा आएगा हिरण्यकशिपु का। पहले एक आदमी गुणगान कर रहा था हरि को, तो फिर हिरण्यकशिपु सहन नहीं पाया उसका। तो अभी प्रहलाद महाराज जाके, जब भी ब्रेक टाइम होता है, जब भी लंच टाइम होता है, तो सब बच्चों को बिठा दिया है। सब बच्चा खेलना चाहता है उस टाइम पे, बच्चों को बिठा दिया, बोल दिया, उसका ध्यान दिया, ज्ञान दिया है, और उसका कीर्तना दिया है, उसको सब सिखा दिया है। टाइम वेस्ट करो, हमारा एज बहुत कम है, 100 साल ही जीते हैं। 100 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मानव जन्म है, हम लोग मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। उसको पूरा मैथमेटिक्स दे दिया है, ठीक है। तो 100 साल में से कैसा एक आदमी टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। 50 साल नींद में चला जाता है, 15 साल 14 साल बचपन में चला जाता है। एक्चुअली 14 साल तक कौमार बोलते हैं। 14 साल तक कोई भी आदमी कोई भी गलती करता है तो उसका रिएक्शंस नहीं मिलता है। कुछ भी पाप करो कोई रिएक्शन नहीं मिलता 14 साल तक। 14 साल के बाद आप कुछ भी करते हो उसका डबल रिएक्शन मिलता है ठीक है। तो 14 साल की एज के पहले ही आपको भक्ति शुरू करना है, तभी आप 14 साल के बाद आप एक अच्छा आदमी बन सकते हैं। नहीं है तो पाप करते हैं, उस पाप का सहना पड़ता है, उस पाप का रिएक्शन लेना पड़ता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने यह सब कुछ ध्यान दे दिया है। तुम सब लोग बड़ा बड़ा नहीं बना है, अभी छोटा छोटा लोग हैं। अभी ये 14 साल का उम्र अगर आप अच्छे से यूज किया, आप भक्त बन गया, आप नरक नहीं जाएगा, आप भगवान का धाम जाएगा, ठीक है। ऐसा धाम है जहां पे आपका बुढ़ापा नहीं है, जहां पे आपका अम, व्याधि नहीं है, जहां पे आपका यू नो मरण नहीं है, जहां पे आपका जन्म नहीं है। ऐसा जगह में आपको चला जाएगा, क्योंकि वहां पे भगवान रहता है, भगवान भी ऐसा है। ये सब कुछ सिखा कि सब लोग मान लिया, बच्चे सब लोग मान लिया है। ब्रेक में कीर्तन करना शुरू किया है, प्रहलाद महाराज हैज बिकम गुरु फॉर देम, ठीक है। ये सब कुछ सिखाने के बाद ये बच्चों को एक और भी सिखाया, बहुत कुछ सिखाया है। हम लोग एक्चुअली बड़ा होने के बाद क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, मनी बिकम स्वीटर देन हनी, है ना इतना मनी का पीछे भागते हैं कि मनी बिकम्स स्वीटर देन हनी। इतना हम लोग हनी को भी हम लोग स्वीट नहीं मानते हैं, अगर मनी देता है तो इतना सीखते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, उसका पूरा लाइफ पूरा यू नो भौतिक मतलब मेटेरियलिस्टिक जीते हैं, और जिंदगी को वेस्ट करते हैं। ये सब कुछ प्रहलाद महाराज का टीचिंग है। आई एम जस्ट पासिंग प्रहलाद महाराज टीचिंग्स वेरी फास्ट, बिकॉज प्रहलाद महाराज का टीचिंग आपने ऑलरेडी सुन लिया है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि बच्चों को डाउट आया है, तुम आप सबसे हम सबसे छोटा बच्चा है, इधर का जितना भी बच्चा लोग है उन सब में से आप बहुत छोटा आदमी है, ठीक है। जो हमको छंद अमर के लिए सिखा रहे हैं उसमें से ये है ही नहीं है जो आप मुझे बता रहे हैं। तो आपको ये सब कुछ कैसा पता चला, किसने बोला है? आ, हम तो आपके पिता के बारे में सुन रहे हैं बाहर से। अब तो आपके घर में रह के पिता के बारे में हमसे ज्यादा मालूम होना चाहिए, लेकिन आप तो पिता के बारे में नहीं बोल रहे हैं। बाहर के लोग ही पिता के बारे में बात कर रहे हैं, तो घर के अंदर का सब लोग पिता के बारे में ही बात करेगा ना, हिरण्यकशिपु के बारे में ही बात करेगा ना। तो आप तो हिरण्यकशिपु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप क्यों भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं? अगर अगर ये सब लोग हिरण्यकशिपु के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसे कृष्ण के बारे में मालूम हो? तो ये हमको आश्चर्य लग रहा है। और आप जो भी बोल रहे हैं वो सच लग रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं हमको अच्छा लग रहा है। हमको भी फॉलो करना है आप जो बोल रहे हैं, अगर फॉलो करने के लिए हमको भी मालूम होना चाहिए आप कहाँ से सीखा है ये बात, कैसे सीखा है ये बात। तो अगर सीखने का सोर्स अगर सही है तो हम भी मान लेंगे कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। प्रहलाद महाराज ने अपना पूर्व स्टोरी बोलना शुरू कर दिया है, कैसे सीखा है। एक्चुअली जब हिरण्यकशिपु ने 36,000 ईयर्स तपस्या करने के लिए गया है, उस टाइम पे कोई नहीं था रूल करने के लिए, राज्य को देखने के लिए कोई नहीं था। उससे पहले सब हिरण्यकशिपु का गुणगान कर रहा था।
और उसके बाद में हिरण्यकशिपु का गुणगान कर रहा था सब लोग। उस 36,000 ईयर्स में कोई नहीं है, मतलब देवता का 100 साल। उस टाइम पे देवदास नीचे आ गया। जब हिरण्यकशिपु नहीं है, देवदास अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया। सब डीमंस को मारना शुरू किया। सब असुर को मारना शुरू किया। असुर लोग भाग रहे क्योंकि उसको रक्षा करने वाला हिरण्यकशिपु अभी नहीं है, तपस्या कर रहे हैं। वो समाधि स्थिति में है। तो ये लोग सब भाग रहे हैं। लेकिन असुर लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे देवता लोग, पकड़ पकड़ के। मतलब उसका पीछे भाग भाग की, पकड़ पकड़ की। एक असुर भी बचना नहीं चाहिए हिरण्यकशिपु वापस आने तक, ताकि हिरण्यकशिपु वापस आके भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक असुर की भी नहीं बचने दिया। कुछ लोग भाग रहे। तो हिरण्यकशिपु का वाइफ जो है कयादु, वो वाइफ उस टाइम पे गर्भवती थी। प्रहलाद महाराज अंदर है पेट में। तो उस टाइम पे प्रहलाद महाराज का मदर अकेली हो गई है। उसका घर में सब भाग गया, मर गया। तो ये भी भाग रही थी। तो देवता लोग उसका पीछे पीछे गया है। देवता लोग उसका पीछे पीछे जाके उसको मारने का कोशिश कर रहे हैं। उसको क्यों मारना चाहता है? एक्चुअली वो लेडीज है, लेडीज को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका पेट में जो बीज है वो हिरण्यकशिपु का बीज है। अगर ये बीज बाहर आया है तो हिरण्यकशिपु पे बड़ा शक्तिमान बन जाएगा। ठीक है, हमको कोई शत्रु से बचना नहीं चाहिए, सबको मारना है करके। एक्चुअली अभी हम लोग मतलब अबॉर्ट करते हैं, है ना? अगर हमको बच्चा नहीं चाहिए तो अबॉर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। अबॉर्ट नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे देवता प्रहलाद महाराज को मारना चाहता है जब पेट में था, लेकिन अब मारना चाहता है डिलीवर होने के बाद मारना चाहता है, डिलीवर होने से पहले नहीं है। इसलिए क्या करना चाहता है, उसकी मदर कयादु को बंदी बना के अपने पास रख के डिलीवर होने तक वेट करके डिलीवर होने के बाद प्रहलाद महाराज को मारना है। यह है उसका प्लान। तो ये भाग रही थी, तो भाग रही। तो फिर वहां पे नारद मुनि वहां पे आया है। सो नारद मुनि आकी, नारद मुनि ने उसको बोला, रुका, तुम लोग उसको क्यों मारना चाहते हैं? वो कोई गुना गुना नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, क्यों मारना चाहता है वो? देन देवता लोग ने बोला कि नहीं, उसका पेट में जो बीज है वो हिरण्यकशिपु का है, उसको नहीं मारेंगे तो वो हमको मारेगा। तो बोला, चिंता मत करो, खयादू का पेट में जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास भक्त है। उसकी वजह से आपको अच्छा होगा, उसकी वजह से आपका बुरा नहीं होगा। उसको कोई शत्रु नहीं है, वो सबका मित्र है, सबका वेलविशर है, और किसी का ऊपर उसका द्वेष नहीं है। तो आप उसको कुछ मत करो, वो बाहर नहीं आएगा तो आपका डेंजर है, तो उसको बाहर आने दो। तो नारद मुनि जो बोला है देवता तो मान लिया है, क्योंकि नारद मुनि जो भी बोलता है सच बोलता है। नारद मुनि हमको मूवीज में जैसा नारद मुनि के बारे में दिखाता है वैसा नहीं है नारद मुनि। ठीक है, नारद मुनि इज अ बेस्ट डिवोटी, और उन्होंने जो भी बात मुंह से निकलता है वो सच होता है। ठीक है, ऐसा पावरफुल आदमी है नारद मुनि। तो नारद मुनि का बात सब मानता है, सिर्फ भगवान भी मानता है, ऐसा है। अगर नारद मुनि कुछ भी बोल दिया, मुंह पे आके बोल दिया, भगवान उसको सही करने के लिए स्वयं उस जन्म भी लेता है। इतना पावरफुल है नारद मुनि। ठीक है, तो फिर इंद्र और उधर देवता सब लोग नारद मुनि का बात सुन के वहां से चला गया है। तो नारद मुनि सामान्य भक्त नहीं है, ठीक है, हमारा जैसा भक्त नहीं है। तो नारद मुनि तो जो भी उसका शरण में आया है उसको भी भक्त बना देता है। हम्म, किसी को भी छोड़ता नहीं है। एक्चुअली नारद मुनि ऐसा आदमी है, दक्ष महाराज का, दक्ष का हजारों बच्चा को, एक्चुअली दक्ष है प्रजापति, ठीक है, दक्ष अपना बच्चा को भी किंग्स बनाना चाहता है। ठीक है, लेकिन किंग बनने से पहले उसको तपस्या करना है। तपस्या के लिए भेजा तो नारद मुनि एक 5 मिनट का संग दिया है, 5 मिनट में उसको बोला है कि संन्यास ले लो। तो सारा हजारों बच्चा, 1 लाख बच्चा कुछ है, तो 1 लाख सॉरी, दक्ष का 1 लाख बच्चा को भक्त बना के, साधु बना के, एक 5 सेकंड में उसको सन्यासी बना के उसको गांव छोड़ के भेज दिया है। बाहर भेज दिया, अरण्य में भेज दिया है। ऐसा ऐसा आदमी है नारद मुनि। उसके बाद दक्ष को बहुत गुस्सा आया है, बोला कि क्यों ऐसा किया है। तो वैसा ही दक्ष भी
नारद मुनि का ब्रदर ही है, ठीक है? तो बोला ठीक है, तो फिर और कुछ बच्चा को फिर इस धरती में लेके आएँगे, वो रूल करेंगे। फिर इसके बाद 1000 बच्चा को दिया है जन्म, तो उस 1000 बच्चों को वो बोला, तुम लोग भी जाओ, तुम लोग भी जाके तपस्या करो। फिर वापस नारद मुनि आए हैं उसके पास, उसको भी भक्त बना दिया है 5 सेकंड में। बना के उसको भी सन्यास बना दिया। कोई दक्ष के पास एक भी बच्चा ऐसा बचा नहीं है जो नेक्स्ट किंग बन सकता है। उसके पास कुछ भी नहीं है। तो नारद मुनि को, सॉरी, इस बार दक्ष को बहुत गुस्सा आया, नारद मुनि को श्राप दिया है। ठीक है? नारद मुनि को श्राप क्या दिया है? आप एक जगह में नहीं रह सकते हो। आपके लिए घर नहीं रहेगा, आपके लिए गांव नहीं रहेगा, आपके लिए आप कोई एक जगह में नहीं रह पाएगा, आप घूमते रहेगा। ये अच्छा है ना? कोई भक्त एक जगह में बैठना चाहता है क्या? नहीं बैठना चाहता है। प्रचार करना है उसका काम है। ठीक है? प्रचार ही सार है भक्त का, है ना? प्रचार करने के लिए घर में बैठ के टीवी थोड़ी देखता है। मेरे को घर भी नहीं चाहिए, घर रहेगा तो घर में बैठूंगा, घर भी नहीं चाहिए। तो घूमना शुरू किया वो। फिर इसके बाद इस बार दक्ष ने डिसाइड किया कि अगर मैं कुछ और बच्चा को जन्म देता हूँ तो फिर वापस नारद मुनि आएगा। तो इसलिए इस बार मैं लड़का को जन्म नहीं देता हूँ, लड़की का जन्म देता हूँ। दक्ष का इसके बाद कुछ लड़की हुआ है, उसी में सती एक है। ठीक है? लॉर्ड शिव जी का वाइफ। ठीक है? तो फिर ऐसा इन हिरण्यकशिपु ने सो हिरण्यकशिपु की जो वाइफ है कयादु, नारद मुनि का आश्रम में रहा था जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं आया। ठीक है? तो नारद मुनि डेली प्रीचिंग शुरू किया। सो नारद मुनि बोल रहा था, कयादु सुन रही थी। तो हमारे पास बोलने के लिए मैं हूं, सुनने के लिए इतना बच्चा, इतना आई नो डिवोटीज है, लेकिन नारद मुनि के पास इतना ज्यादा लोग नहीं है, एक ही आदमी। फिर भी वो प्रीचिंग कर रहे हैं। दैट इज द ग्रेटनेस। अगर हम बोलेंगे प्रभु जी मैं अकेले आदमी हूँ, मैं आऊंगा आपके लिए, आपका क्लास सुनने के लिए, तो हो सकता है हमको भी क्लास देने के लिए इतना मजा नहीं आता होगा हमको। एक्चुअली एक रियल डिवोटी ऐसा होता है जो अगर एक भी आदमी बैठेगा क्लास में तो बात सुनाते हैं, वो है रियल प्रचार करने वाला आदमी, वो है रियल डिवोटी। ठीक है? सो नारद मुनि से सुनने वाला कोई नहीं है, एक ही है, कयाद। तो वो भी बीच बीच में सो रहे हैं। हाँ? वो भी बीच बीच में सो रहे हैं, हम जैसा ही है, नींद आता है, कथा शुरू करते ही नींद आता है। ठीक है? वो भी सो रहे हैं, लेकिन पेट में जो बच्चा है ना, वो नहीं सो रहे हैं, वो सुन रहे हैं। इसलिए गर्भवती स्त्री क्या करना चाहिए? कथा सुनना चाहिए, हरि कथा सुनना चाहिए, सीरियल्स देखना नहीं चाहिए। हाँ? तो तो इतना सुनाया, हिरण्यकशिपु वापस आने तक पेट में ही था, प्रहलाद महाराज बाहर नहीं आया। मतलब पेट में ही कितना साल रहा? 9 मंथ्स हम रहते हैं। प्रहलाद महाराज 36,000 ईयर्स था। हाँ, हिरण्यकशिपु वापस आने के बाद डिलीवर किए, क्योंकि कयादु डिसाइड किया कि हिरण्यकशिपु के आने के बाद ही मैं डिलीवरी करूंगी, इससे पहले मेरे को डिलीवरी नहीं करना है। ठीक है? तो हिरण्यकशिपु मतलब उस टाइम पे उन लोगों का उतना पावर है ना? तो हिरण्यकशिपु वापस आने तक डिलीवर नहीं किया प्रहलाद महाराज को। तो प्रहलाद महाराज 36,000 ईयर्स नारद महामुनि का सुन रहा था कथा, इसलिए वो इतना प्योर डिवोटी बन गया। इस धरती में आते ही प्रहलाद महाराज को जो नारद मुनि ने बोला वो बात बोल रहा था, जो शंडामर्क ने बोला वो बात नहीं बोल रहा था। इसलिए हिरण्यकशिपु जब पूछ रहा था कि आपका गुरु ने जो सुनाया है उसमें बेस्ट क्या है, बोलो बोला, तो मेरा बेस्ट गुरु ने जो मेरे को बेस्ट सुनाया है वो मैं बोलूंगा करके श्रवणम कीर्तनम बोला। समझा ना? तो नवविध भक्ति ने जो सिखाया है ना, वो कोई और नहीं है, नारद मुनि सिखाया है। ये सारा बात नारद मुनि से सुना करके प्रहलाद महाराज ने बाकी असुर बच्चों से बोल दिया है। ठीक है? तो ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। सो तो भगवान के बारे में बोल के सबको कन्विंस करके सबके साथ कीर्तन कर रहे, देखो प्रहलाद महाराज। ठीक है? तो ये कीर्तन देखा शंडा अमर करे। हाँ? तो
बीच में जो गैप आया, लंच टाइम ब्रेक आया है, तो शंड अमर बाहर गया है। आने से पहले ये सब कुछ कथा सुना दिया है और सबको हरि कथा सुना दिया है, सबको कीर्तन भजन करवा दिया है, सब भक्त बन गया है। आसुर नहीं, गुरुकुल में सब भक्त हैं। तो एक्चुअली शंड अमर ने और बड़ा गलती कर दिया है ना, प्रहलाद महाराज को वापस लेके आके। तो इस बार डिवोटीज, पहले डिवोटी एक ही था, इस बार डिवोटीज ज्यादा बन गए। ये सब लोग फिर मिलके और कितना डिवोटीज को बना सकते हैं। जैसा प्रभुपाद ने बनाया है लाखों डिवोटीज को। एक ही प्रभुपाद था जब उन्होंने यूएस गया है, हाँ? तो कितना लाखों डिवोटीज बन गए अभी, ठीक है। तो ऐसा प्रहलाद महाराज भी एक ही था उस टाइम पे, उन्होंने इतना सारा भक्त को बना दिया है, ठीक है। तो फिर हिरण्यकशिपु के पास गया है, ठीक है। हिरण्यकशिपु के पास गया, तो हिरण्यकशिपु के पास यही बात वापस बोलना शुरू कर दिया। वो मोस्ट impudent, most unintelligent disruptor of the family, O lowest of mankind, you have violated my power to rule you, and therefore you are an obstinate, obstinate fool. Today I shall send you to the place of Yamaraja. तो अभी तक जो नहीं कर पाया हिरण्यकशिपु ने, तो अभी बोल रहे मैं करूंगा। तो अभी तक उसका जो सेवक है उसको दिया मारने के लिए, अभी सेवक मार नहीं पाएगा करके उसको पता चला है। तो उन्होंने क्या बोला कि वो खुद मारेगा अभी। तो प्रहलाद महाराज एजिटेटेड नहीं था जैसा हिरण्यकशिपु था। तो प्रहलाद महाराज तो शांत था, प्रहलाद महाराज कंपोज्ड था। लेकिन हिरण्यकशिपु बोल रहा है कि मैं आपको मारूंगा इस बार। आपको कोई नहीं बचा सकते हैं, आपका हरि भी नहीं बचा सकते हैं। लेकिन आप बोलो, इतना लोग मारना चाहता था लेकिन मार नहीं पाया, कहां से आया आपका ये पावर? कौन दिया ये पावर आपको? हम्म? तो प्रहलाद महाराज ने बोलना शुरू कर दिया, इवन टू हिरण्यकशिपु, वही भगवान ने दिया है जो भगवान आपको भी पावर दिया है, मेरे को भी वही भगवान पावर दिया है। मतलब आप भगवान नहीं है, आपको भी भगवान ने पावर दिया है, उसी पावर से आप रूलिंग कर रहे हैं, उसी पावर उसी ताकत से आप सबको डरा रहे हैं। भगवान ने दिया है वो पावर, आपको जो पावर दिया है ना, वही पावर मेरे को भी दिया है भगवान ने। लेकिन फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है भगवान का और हिरण्यकशिपु का? हिरण्यकशिपु मानता है मैं खुद भगवान हूं, लेकिन प्रहलाद महाराज मानता है मैं भगवान का सेवक हूं। यही है फर्क, ठीक है ना। तो उसका पास भी पावर है, इसका पास भी पावर है। इन्होंने कोई वेपन यूज नहीं किया, लेकिन इतना लोग इतना साथ इतना तरीका से मारना चाहता है फिर भी मार नहीं पाया, मतलब इसको उससे भी ज्यादा पावर है। हाँ? लेकिन वो पावर को अपने लिए यूज नहीं कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, इसलिए बोल रहे हैं वही पावर मेरे को भी है जो भगवान ने आपको पावर दिया है। तो हिरण्यकशिपु ने बोला कि तू बोलता है मैं भगवान नहीं हूं और मेरे को भी कोई और पावर दिया है, मैं खुद पावर सोर्स हूँ। ठीक है, मेरा मैं ही पावर सबको दे रहा हूं। तो मैं बोलने से पूरा देवता काम कर रहे हैं, मैं बोलने से पूरा प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो मैं बोलने से ही सब कुछ हो रहा है। तो आप बोलते हैं कोई और है जो इन सब दुनिया को चलाता है, नहीं है, मैं हूं करके। हाउ डेयर यू टू टेल दिस थिंग्स टू मी, मैं खुद आपको मारूंगा करके। कौन प्रोटेक्ट करता है देखता हूँ करके, आपका भगवान किधर है? ठीक है, जो प्रोटेक्ट करेगा, आपको बोला कि आपका भगवान जो प्रोटेक्ट करेगा बोल रहे हैं, वो भगवान किधर है? तो हिरण्यकशिपु ने कॉन्फिडेंटली पूछा कि ये स्तंभ में आपका भगवान है क्या? क्यों उसे स्तंभ दिखा के दिखा दिया, बोला क्योंकि उसको 100% कॉन्फिडेंट था उस स्तंभ में भगवान नहीं है। क्योंकि वो स्तंभ, हो सकता है जब हम घर बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पूजा को कंक्रीट लगाते हैं, शंकुस्थापन जो भी बोलते हैं, हाँ? तो इनिशियल स्तंभ जो डालते हैं वो ओनर ही डालते हैं, है ना। तो वैसे ही इस राजमहल को जो बनाया है, जब बनाया हिरण्यकशिपु ने बनाया होगा ये स्तंभ को, इसलिए इस स्तंभ में पक्का भगवान नहीं है बोल के मालूम है। इसलिए इन्होंने बोला कि ये स्तंभ में भगवान है क्या? तो बोला कि भगवान तो हर जगह है। तो यही बात इवन कृष्ण ने भगवत गीता में भी बोल दिया, सर्वस्य चाहम
दिस अनइनहिबिशन एवरीवेयर आई एम देयर इंक्लूडिंग इन योर हार्ट। ठीक है, भगवान हर जगह। तो हिरण्यकशिपु ने बोला कि अगर इस स्तंभ में भगवान है मानते हो तो मैं इस स्तंभ में मेरे को भगवान दिखा दो। तो हिरण्यकशिपु आगे बढ़ा, उस स्तंभ को तोड़ा, बहुत बड़ा शब्द आया। From within the pillar came fearful sound, which appeared to crack the covering of the universe. पूरा यूनिवर्स को क्रैक आने जैसा शब्द आया है। ठीक है, एंड हिरण्यकशिपु heard that wonderful tumultuous sound which had never before been heard. Upon hearing the sound, the demons were afraid. वहां पे जितना भी demons था सब थर गया। एक बार अचानक इतना बड़ा साउंड आया, पूरा यूनिवर्स ना प्रलय हो गया करके इतना साउंड आया है। उस साउंड में से निकला है भगवान नरसिम्हादेव। ठीक है, तो भगवान नरसिम्हदेव को देख सकते हैं आप, स्तंभ से बाहर निकला है, ऐसा निकला है। तो पहले बोला है ना, मेरे को कोई मार नहीं सकते, न ना आदमी मार सकते हैं, ना देवता मार सकते हैं, ना जंतु मार सकते हैं। तो तो भगवान ने ना आदमी ना जंतु ऐसा बनकर आया है ना, ना देवता ऐसा बनकर आया है। तो क्योंकि क्यों ऐसा भगवान भगवान तो कैसा भी मार सकते हैं हिरण्यकशिपु को, क्योंकि हिरण्यकशिपु को एक उसका शुद्ध भक्त ने वचन दिया है, वरदान दिया है। कौन दिया है? ब्रह्मदेव दिया है। ब्रह्मदेव ने बोला कि आपको ऐसा 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 तरीका से आपको मार नहीं सकते हैं। तो भगवान उसका भक्त का बात को मान रखना चाहिए, इसलिए उस भक्त का बात को मान रखने के लिए इस रूप को ले लिया है। ये जो रूप है, ये रूप ब्रह्मदेव ने जो वरदान दिया है, उस वरदान में कोई किसी से भी मैच नहीं करता है। और दूसरी बात, ना अंदर मार सकते ना ऊपर मार सकते, ना धरती में मार सकते ना आकाश में मार सकते हैं। ये भी सेटिस्फाई करते हुए हिरण्यकशिपु को मारना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु को अपना गोदी में लिया है भगवान। तो जब जब एक्चुअली भगवान अवतरित हुआ है, भगवान कैसा दिख रहा था उन्होंने वर्णन दिया है भागवत में, मैंने इधर समराइज किया है। Angry eyes like molten gold, shining mane, deadly teeth, razor sharp tongue, his jaws parted, entire body touched the sky। मतलब हम लोग इधर रहते तो हमारा सर कहाँ जाए, इधर भी टच नहीं करते ना। ठीक है, भगवान का पूरा बॉडी स्काई को टच कर रहे, इतना बड़ा है। ठीक है, और hair on his body as white as rays of the moon। मून रेस जैसा होता है ना, वैसा है अपना बॉडी में से जो हेयर निकल रहा है। और आर्म्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस, ही किल्ड द डीमंस। एक एक हाथ से एक एक डीमन को पकड़ के मार रहा था है ना। तो एक बार आर्म्स को स्ट्रेच किया है, पूरा आर्म्स, कितना आर्म्स है गिन नहीं सकते तो उतना आर्म्स को बाहर लिया है, एक एक आर्म से एक एक असुर को पकड़ा है और मार दिया है। बचा कौन? और हिरण्यकशिपु ही बचा है। तो हिरण्यकशिपु को अपना गोद में लिया है भगवान नरसिम्हदेव ने। गोद में लेके उसका उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र यूज नहीं किया, अपना नाखून से उसका पेट को चीर लिया, क्योंकि उसका अंदर से इंटेस्टाइन जो होता है उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के अपना गले में डाल दिया। और उसका हार्ट जो है, अंदर से हार्ट होता है ना, हार्ट को बाहर निकाल के ऐसा देखा है, इधर मेरे को रहना है लेकिन तुम मेरे को नहीं रखा, है ना। इस हार्ट इधर रहने का नहीं है, लायक नहीं, फेंक दिया है भगवान ने। तो ठीक है, तो ऐसा जब आया है लॉर्ड नरसिम्हदेव, however captured the great demon along with his club, just as Garuda might capture a great snake। ठीक है ना, गरुड़ एक स्नेक को पकड़ता है, सांप को पकड़ता है ना, कैसा पकड़ता है, दोनों हाथ से ऐसा पकड़ लिया है। ऐसा पकड़ के इन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा है। ओके, सो ये है स्टोरी ऑफ हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद महाराज, द एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड टू द डिवोटीज। तो अगर
हम भी भगवान का प्रोटेक्शन लेना है, तो भगवान को शरण में जाना है। सो जैसा प्रहलाद महाराज बोला, पहले ही हम लोग ने फर्स्ट श्लोक में ही हम लोग ने सुना है कि भगवान ने प्रहलाद महाराज को ग्लोरीफाई किया है, बोला किसी को भी मेरा प्रोटेक्शन चाहिए तो वो तुमको फॉलो करना चाहिए। जैसा प्रहलाद महाराज भक्ति किया है ना, प्रहलाद महाराज का भक्ति अकुंठित भक्ति है। प्रहलाद महाराज का भक्ति अहित की भक्ति, अप्रतिहता भक्ति। अहित की अप्रतिहता मीन्स the bhakti which is performed for the benefit is called ahituki bhakti. ahituki bhakti means अगर आपने भक्ति कुछ बेनिफिट के लिए किया तो दैट इज नॉट ahituki bhakti. Okay, ahituki bhakti means you do your devotional service for the satisfaction of the Lord, not for the satisfaction of yourself. ये भक्ति मैं कर रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं क्लास बोल रहा हूं, एक क्लास मेरे को खुशी देता है तो ये भक्ति नहीं होता है। ये क्लास बोलने से मेरे को नाम आता है तो ये भक्ति नहीं है। ये क्लास बोलने से, ये प्रवचन देने से अगर भगवान खुश होता है, ये भक्ति है। ठीक है, इसको बोलता है तो की भक्ति, डिजायरलेस भक्ति, अपना भक्ति। भक्ति मीन्स एनी टाइम भक्ति करना। ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति करूंगा जब मेरे को फेवरेबल सिचुएशन है। अभी मेरे को फीवर है, मैं जब नहीं करूंगा, खा नहीं पा रहा हूँ, मेरे को चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को फीवर है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, मेरे घर में रिश्तेदार आया है, मेरा घर में कुछ काम है, इसलिए मैं सेंटर में नहीं आ पा रहा हूँ, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। इसको नहीं बोलते अप्रतिहता भक्ति। मतलब इसका फेवरेबल सिचुएशन था भक्ति करने के लिए। हमसे कितना बुरा हालत था प्रहलाद महाराज का, हमारे लिए। हम अगर मंदिर जा रहे बोला तो कोई मारने वाला है हमको? हाँ? तो हमको ऊपर से नीचे फेंकने वाला कोई है? कोई नहीं है। ऊपर से वो लोग आके ड्रॉप करके जाता है ना? हमारा हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी है, कोऑपरेट करता है ना, भक्ति करने के लिए कोऑपरेट करता है। फिर भी हम लोग प्रहलाद महाराज जैसा भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। इतना फेवरेबल सिचुएशंस है हमारा लाइफ में जो प्रहलाद महाराज के पास नहीं था। प्रहलाद महाराज के पास हमेशा डिफिकल्टीज था। मुंह से हरिनाम आता है तो कोई आके मारता है ना? हम लोग हरिनाम बोलते हैं तो सब हरिनाम बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो, मैं एक बोल रहा था, 20-25 लोग बोलना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पे ऐसा हालत नहीं था। इतना फेवरेबल सिचुएशन है ही नहीं है उसके पास, फिर भी उन्होंने भक्ति किया, फिर भी उन्होंने हरिनाम को छोड़ा नहीं है। इसको बोलता है अप्रतिहता भक्ति। ठीक है, तो हमारे खुशी के लिए कुछ भी किया तो दैट इज नॉट द भक्ति। If I prepare this, I get happiness. If I worship, I get happiness. If I give class, I get happiness. That is what. If Krishna can be pleased, if devotees can be pleased, that is bhakti. Whatever the activity that you do, if that can please the devotees, if that can please Krishna, then that itself is equal to bhakti. You don't have to do anything else. Okay. So प्रहलाद महाराज ने वही किया है। ठीक है, thank you very much. Hare Krishna. So we'll take couple of questions if anybody has anything. कोई क्वेश्चन नहीं? प्लीज आस्क एनीथिंग। अभी भी ये जैसे वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, तो अमर होने का, तो वो बोलो कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो मैं नहीं दे सकता, तो इसको थोड़ा वो खुद Yeah. ब्रह्मा विष्णु ना इन्होंने वरदान ब्रह्मदेव से पूछा है, महाविष्णु से नहीं पूछा है। ब्रह्मदेव भी अमर नहीं था। हाँ, एक्चुअली पूरा 14 प्लैनेटरी सिस्टम में टॉप मोस्ट प्लैनेट जो है वो ब्रह्मा का प्लैनेट है। ये 14 प्लैनेट्स जो हैं, ये 14 के 14 प्लैनेट इस मटेरियल वर्ल्ड में ही है। मतलब ब्रह्मदेव लोक से लेके नीचे पाताल तक पूरी मटेरियल प्लैनेट है, लेकिन टाइम स्केल अलग है। ठीक है, टाइम स्केल अलग है। इधर 60 सेकंड में 1 मिनट बनता है, इधर 60 मिनट में 1 घंटा बनता है। उधर ऐसा नहीं है।
थोड़ा ज़्यादा टाइम है। उधर 1 घंटे के लिए कुछ साल रुकना पड़ता है हमारा हिसाब से। मतलब टाइम स्केल अलग है, बट वहाँ पे भी वो लोग 100 साल ही जीते हैं, यहाँ पर भी हम लोग 100 साल ही जीते हैं, ठीक है ना? और देवता लोग भी वो लोग भी 100 साल ही जीते हैं। लेकिन देवता लोग का 100 साल हमारा 36,000 का 1000 साल का इक्वल है। समझा ना? लेकिन 100 साल के बाद वो भी मरता है, वो भी दूसरा बॉडी लेता है, इंक्लूडिंग ब्रह्मदेव। Brahmadev is the first living entity who came into this material planet. हम सब इस धरती में आए हैं ना, इस प्लैनेट में आए हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में आया है ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में हमसे पहले पहले कौन आया है? तो ब्रह्मदेव आया है। ब्रह्मदेव का माता पिता नहीं है, ब्रह्मदेव का माता पिता स्वयं भगवान है। इसलिए आप देखेगा तो भगवान का नाम से एक फ्लावर आता है, फ्लावर से ब्रह्मदेव आता है। इसलिए भगवान विष्णु ही ब्रह्मदेव का फादर है। ये जो फ्लावर है ना, ये फ्लावर जो है, ये है 14 प्लैनेटरी सिस्टम, ऊपर से नीचे तक 14 प्लैनेट्स हैं उसमें, उस फ्लावर में, ठीक है? तो ब्रह्मदेव का भी 100 साल के बाद दूसरा ब्रह्मदेव आएगा पोजीशन में। जैसा अभी रूलिंग में 5 साल के बाद मोदी जाएगा, कोई और आएगा, है ना? तो एक पोस्ट हो गया। पोस्ट है, ब्रह्मा इज अ पोस्ट, नॉट ए पर्सन। वैसा ही इंद्र इज अ पोस्ट, नॉट ए पर्सन। इंद्र का पोस्ट में कोई भी रह सकते हैं, ठीक है? इवन वरुण, कोई भी देवता ले लो, सब पोस्ट है। दे आर नॉट पीपल, दे आर नॉट पर्सन नहीं, दे आर द पोस्ट। तो उस पोस्ट पे कोई भी आ सकते हैं, क्वालिफाइड पर्सन। अगर आप 100 साल तक, सॉरी, जन्म तक आप एक भी गलती नहीं किया, मान लो आपने एक एक जन्म ले लिया, फर्स्ट जन्म में एक भी गलती नहीं किया, दूसरा जन्म में एक भी गलती नहीं किया, ऐसे 100 जन्म लिया है, 100 जन्म तक एक भी गलती नहीं किया है, उसके बाद आप ब्रह्मदेव बन सकते हैं। यू आर एलिजिबल टू बिकम ब्रह्मदेव। इसका मतलब एक एक सामान्य जीव ब्रह्म बन सकते हैं, लेकिन एक सामान्य जीव भगवान नहीं बन सकता है। समझे ना? तो आपको चाहिए तो आप भी ब्रह्मदेव बन सकते हैं। ओनली थिंग इज बॉडी चेंज, राइट? इस बॉडी छोड़ के दूसरा बॉडी में जाना है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? 100 जन्म तक एक भी गलती नहीं करना चाहिए, पुण्य आत्मा रहना है। लॉर्ड शिवा इज नाइदर जीव तत्व नॉर भगवान तत्व, इट्स इन बिटवीन। Again and again, Bhakt like Brahmadev. He is also eternal. Lord Shiva is also eternal. शिवा इज शिवा शिवा जन्म लेता है, शिवा जन्म मृत्यु नहीं रहता शिवा है, लेकिन वो भगवान नहीं है, भगवान का एक्सपेंशन है लॉर्ड शिवा। भगवान करना चाहता है, मान लीजिए आप कंपनी का मालिक है, ठीक है? कंपनी में सब काम आप नहीं करते हैं ना, एचआर का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, एडमिन डिपार्टमेंट अलग है, और अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, एक एक डिपार्टमेंट का एक एक हेड होता है ना। तो इसलिए भगवान किसी को रखता है, देवी देवता को। तो भगवान ने शिव को आया है, तो शिव जैसा एक्सपैंड किया है अपना ड्यूटी निभाने के लिए, समझे ना? तो एज ए शिव, भगवान डायरेक्टली वो कुछ नहीं करता है, बट अंडर हिज इंस्ट्रक्शंस हिज एक्सपेंशंस विल डू। तो मान लीजिए ब्रह्मा से लेके बाकी सब टेम्पररी है, वो बॉडी चेंज करता है। शिवा एंड विष्णु बॉडी चेंज नहीं करते हैं, देयर बॉडी इज दिव्य बॉडी, ट्रांसडेंडल, ठीक है? बट भगवान कौन है शिवा विष्णु में? इवन शिवा इज एक्सपेंशन ऑफ विष्णु, तो सोर्स विष्णु, ठीक है? नेक्स्ट, What's the difference between Rajasya Yajna and Ashwamedha Yajna? अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व को बलि देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। सो इन अश्वमेध यज्ञ दे यूज हॉर्स। यज्ञ करके आफ्टर द यज्ञ, आफ्टर द सैक्रिफाइस, they worship the horse and they leave the horse to go anywhere. If that horse goes to multiple places, the whole place becomes there.
Let us say if it is left and nobody is stopping it, and it can go anywhere, right? So what are all the places it goes, that all becomes part of their kingdom. Okay. Whereas in Rajasuya Yajna, whole universe is covered under the Rajasuya Yajna. Same. Same procedure, but in Rajasuya Yajna, they don't release the horse. Okay. But they will announce that the whole universe should come under my control. If anybody wants to stop me or stop this yajna, come and fight with me. Okay. If you win, you will become you will become the king of the whole universe. If you cannot defeat me, then I will become the king of whole universe. If nobody is challenging the person who is performing the Rajasuya Yajna, so he will perform the Rajasuya Yajna and the Rajasuya Yajna will be successful. While performing the Rajasuya Yajna, if anybody challenge, then he has to fight with them and defeat them. But whereas in Ashwamedha Yajna, it is not like that. If they stop that horse also, they are as good as challenging the king. But horse cannot go entire universe. So Rajasuya Yajna is the topmost yajna compared to Ashwamedha Yajna. Because Ashwamedha Yajna is also top, but Rajasuya Yajna requires a lot of money compared to Ashwamedha Yajna. That's why not not all kings can perform such yajnas. It's very difficult. It requires a lot of money. Even for Dharmaraj to perform this yajna, he is not having money. He said, I cannot perform this yajna. I don't have so much money. Because this yajna was performed when he was thrown out of Hastinapur, and he was not having anything at that time. He was only having Indraprastha. Right? So, um, so Krishna has told, you go some direction. Okay. In north direction you go. Krishna sent Arjuna, Bhima, Nakula, Sahadeva in four directions. And then he told, you bring the money from all the kings in four directions. They go and tell, we are performing Rajasuya Yajna, give us the money. If anybody says, I don't want to give you money, then these four soldiers of Yudhishthira, they kill them or they defeat them and they bring the money. Okay. So there itself, everybody accepted the emperorship of Dharmaraj, because the whole universe, all the kings have donated for Rajasuya Yajna, including Dhritarashtra, including Duryodhana. Okay, that's why they could perform Rajasuya Yajna. After Rajasuya Yajna, they become the emperors. So, but that yajna was performed under the supervision of Lord Krishna. That's why it is not a materialistic yajna. Even though that yajna is done for the kingdom, that is not considered to be materialistic, because Lord Krishna instructed them and they are pleasing Lord Krishna out of that yajna. But whereas the tapasya or yajna, what Hiranyakashipu has done, it is not for the satisfaction of Lord. It is for the sense gratification. It is for his own enjoyment. Okay. क्योंकि ये लॉर्ड नरसिम्हा के फाइनल डिसअपियर कैसे हुए ये तो ये कॉलम हाँ. कैसे भी एक्चुअली लॉर्ड नरसिम्हा, एक्चुअली इसकी बात आता है. लॉर्ड नरसिम्हा जब आया था, ब्रह्मदेव प्रार्थना करता है, देवता से प्रार्थना करता है, लक्ष्मी प्रार्थना करती है. ये सब एक्चुअली डर जाते हैं, नरसिम्हा देव को देख के डरता है. कोई भी नरसिम्हा देव भगवान को उस रूप में कभी देखा नहीं है. उग्र रूप है ये. इस उग्र रूप में कोई देवी देवता देखा नहीं है. सब डर जाते हैं, इंक्लूडिंग लक्ष्मी देवी. लक्ष्मी देवी जो भगवान के हृदय में रहती है, वो भी देख के डर जाती है. पास भी नहीं जाना चाहते हैं, पास जाने के लिए भी डरता है. तो उस टाइम पे बाकी देवी देवता, ब्रह्मदेव, लक्ष्मी देवी सब जाके प्रहलाद महाराज को पूछता है, तो हम सब डर रहे हैं, आप डरते नहीं हो. ठीक है, आप जाके यू गो एंड पैसिफाई लॉर्ड नरसिम्हा. यू गो एंड पैसिफाई लॉर्ड नरसिम्हा. तो तब प्रहलाद महाराज नरसिम्हा भगवान का कीर्तन करता है पैसिफाई करने के लिए. ये आता है. नाउ आई हैव टेकन ओनली द चैप्टर्स फ्रॉम 3 to 8. इफ यू टेक द चैप्टर्स फ्रॉम 8, आफ्टर 8 9 10 चैप्टर्स अगर लेगा, 9 10 11 चैप्टर्स लेगा प्रहलाद महाराज का कीर्तन, एंड इसके बाद एक एक देवी देवता का कीर्तन, लक्ष्मी देवी का कीर्तन, सब कुछ आता है. उसमें नरसिम्हा भगवान को उस रूप में कोई भी डरता था, इसलिए नरसिम्हा भगवान ने उसको उपसंहार मतलब विथड्रॉ किया.
बाद में, कुछ कुछ दिन के बाद। मतलब जब प्रहलाद महाराज नरसिम्हा भगवान के पास में जाता है, तो नरसिम्हा भगवान को देख के बाकी कोई डर रहा ही होगा, लेकिन प्रहलाद महाराज डरता नहीं है। प्रहलाद महाराज जाके नरसिम्हा भगवान का गोद में बैठता है और नरसिम्हा भगवान में लेता है प्यार से। उतने उग्र रूप में रहकर भी नरसिम्हा भगवान प्रहलाद महाराज को प्यार से लेता है हाथ से और हग करता है और गोदी में बिठाता है। तो नरसिम्हा भगवान का ये मतलब स्वयंभू हर जगह है, मतलब देख सकते हैं। हम लोग जाएंगे क्या प्रभु इधर तो मेलकोटे। सो वी विल प्लान फॉर मेलकोटे one day. Morning we will go, evening we will come back. So Melkota is a powerful Swayambhu Vigraha. Okay, so you will see the Vigraha. If they sacrifice the horse in that yagna, so how will he go through the places? तो सैक्रिफाइस बाद में करता है, पूरा दुनिया घूम के वापस आता है, आने के बाद या उसके साथ कोई जाता है, पूरा घूमने के बाद उसको वापस लेके आता है, उसके बाद करता है सैक्रिफाइस करता है। नाइस क्वेश्चन। Thank you very much. Hare Krishna. If you have any other doubts, we will discuss after the during the prasadam time. Thank you very much. Hare Krishna. Vancha